Hello again, welcome back. We are going to continue with function, and in this video we are going to discuss periodic functions. Periodic functions का मतलब होता है something that repeat itself. आपने सिंपल पीरियोडिक मोशन देखा होगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन देखा होगा. पीरियोडिक का मतलब होता है आफ्टर अ सर्टेन पीरियड इट कीप्स ऑन रिपीटिंग. लाइक आपकी स्कूल में होता है फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड. व्हाट इज दैट? आफ्टर एवरी 50 मिनट और वट एवर जो भी टाइम इंटरवल है, आफ्टर एवरी 50 मिनट अ न्यू क्लास स्टार्ट्स एंड द होल प्रोसेस गोज अगेन. अटेंडेंस होगा, फिर क्लास होगी, पढ़ाया जाएगा, क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, फिर अगेन आफ्टर 50 मिनट्स फिर से क्लास स्टार्ट होगी, फिर से अटेंडेंस होगा if there is any. So idea is कि something that repeats after fixed interval of time. Repeat, फिर same to same, फिर same to same, फिर same to same. That is called periodicity. Like day and night 24 hour का period है. Every 24 hour the whole process starts again. और पूरा एक चक्कर घुमा, उसके बाद वापस से सेम पोजीशन आया, फिर से रोटेशन, फिर से रोटेशन, फिर से रोटेशन. सन की बात करें अबाउट, तो दैट विल बी 365 days and some hour and some second. That is okay. So idea is something that occur infinitely in a particular manner is called a periodic function. Periodic actually. Periodic function का मतलब क्या हुआ कि एक फंक्शन जिसका वैल्यू कुछ एग्जिस्ट करेगा, आफ्टर अ फिक्स इंटरवल दैट सेम वैल्यूज विल अकर अगेन, आफ्टर दैट सेम इंटरवल द सेम वैल्यूज विल अकर अगेन. लाइक द बेस्ट एग्जांपल इज y इक्वल्स टू साइन एक्स. y इक्वल टू साइन एक्स की अगर बात करते हैं तो आई कैन से दिस इज अ ग्राफ ऑफ y इक्वल टू साइन एक्स. व्हाट डू यू सी दैट कि ये वाला जो पोर्शन है 0 से 2 पाई वाला, दिस इज द पार्ट बिटवीन 0 एंड 2 पाई. 0 से 2 पाई वाला जो पार्ट है ना, दिस पार्ट इज रिपीटिंग अगेन एंड अगेन. सो इफ आई नो कि 0 से 2 पाई में क्या स्टोरी है, तो आई कैन टेल यू द स्टोरी अबाउट दिस साइन ऑल योर लाइफ. माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक एवरीवेयर वी कैन आइडेंटिफाई, बिकॉज दिस इज द पोर्शन दैट इज गोइंग टू रिपीट इटसेल्फ. सो दीज फंक्शंस आर कॉल्ड पीरियोडिक फंक्शन. नाउ इफ आई ड्रॉ अ फंक्शन cos x, अब ये cos x का ग्राफ है, इसका पीरियड क्या होगा, ये भी पीरियोडिक है या नहीं? यस, इट इज ऑल्सो पीरियोडिक. I can say कि this portion is repeating itself. देखो सेम टू सेम, बिल्कुल सेम टू सेम वहाँ है, and again सेम टू सेम यहाँ भी होगा. So this portion is repeating again and again. Now it's not important that you take 0 to 2 pi or you take minus pi by 2 से 3 pi by 2. You can pick any interval that is repeating. Like if I say कि I am going to take this portion, what do you see? You see a part of sine theta which occur again exactly the same way in this, which occur exactly the same way here, same way here also. So the periodic function means you can pick any part of that. You can pick any of that infinitely long period portion that is repeating itself. You can, मतलब it's not important that you say कि जो circulation है, जो rotation है, वो 12 midnight to 12 midnight ही हमें लेना है. I can say the process repeat 12 noon to 12 noon. I can say the process repeat 1 p.m. to 1 p.m. I can say process repeats from 6 a.m. to 6 a.m. Everything goes and again and again. So this is the idea. एक और फंक्शन लेते हैं. Let's say कि एक फंक्शन है this. What do you see? What I see that
कि this portion is occurring again and again from minus infinity to plus infinity. So that is again a periodic function. Let's take one more example. ये एक standard function है. You all know about this function. Think of it. What is this function? This is basically fractional part function. So what you see that this part is repeating again and again. I can also say this part. देखो, everywhere what you see something like this and something like this. देखो यही पार्ट हर जगह है. अगर मैं ये सेम टू सेम रिपीट करता हूं, लेट मी रिपीट द सेम, तो ये पार्ट हो गया और फिर उसके बाद ये वाला पार्ट हो गया. देखो ब्लू एंड ब्लैक आर सेम. फिर वापस से ये पार्ट और ये पार्ट. तो आई एम गोइंग टू रिपीट दिस ब्लू एंड ब्लैक पोर्शन अगेन एंड अगेन. व्हाट डू आई गेट? आई गेट समथिंग लाइक दिस. सो आइडिया इज अ फंक्शन that repeat its value after a certain interval of time is called the periodic function. And that period, that certain interval of time, certain interval you can say, and that interval is actually called the period of the function. अब पीरियड की बात करेंगे तो आई कैन से साइन एक्स का जो पीरियड है वो 2 पाई का है. आफ्टर एवरी 2 पाई वैल्यू इज रिपीटिंग. फ्रैक्शनल पार्ट की बात करेंगे तो आफ्टर 1 यूनिट, आफ्टर 1 the value of the function is repeating. You can say कि this is 1, this is 1, this is 1, or 1, 1, 1. So after 1 the value of fractional part repeat. कैसे? 1.3 का fractional part 0.3, 2.3 का fractional part 0.3, 3.3 का fractional part 0.3, 4.3 का fractional part 0.3, 8.3 का fractional part 0.3. After every displacement of 1, the value will repeat itself. So that is the idea about the periodic function. ये तो समझने की बात थी. ग्राफ जो अभी तक मैंने बहुत सारे आपको अराउंड 30 ग्राफ्स बताए हैं, उसमें यू कैन सी तो यू विल फाइंड कि साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक और फ्रैक्शनल पार्ट, दीज 7 आर पीरियोडिक और बाकी उनके मॉडिफिकेशंस होंगे. बट स्टैंडर्ड में आई कैन से कि वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 6 एंड एक फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन. स्टैंडर्ड में दीज 7 और पीरियोडिक और बाकी सब इसके कॉम्बिनेशन धीरे धीरे बनते जाएंगे. तो ये तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए था ग्राफिकल. नाउ एक्चुअली व्हाट वी हैव टू डू, वी आर गोइंग टू डू दैट इन एनालिटिकल वे. हेलो एवरीवन. In this short video, I am going to discuss about the periodicity of some standard functions. कि वो periodic है या नहीं. Periodic का मतलब होता है एक छोटा सा पार्ट, smallest पार्ट या कोई बड़ा पार्ट, कोई भी पार्ट जो बार बार रिपीट होता. तो if you see here, एक कोई भी सा भी पार्ट अगर पिक कर लेते, सपोज ये वाला पार्ट पिक कर लो. If you see after every part it is repeating same and same again and again. तो ये वाला पार्ट हमेशा infinitely repeat हो रहा है and so this is an periodic function. हाँ, वो बात अलग है कि इसका पीरियड आप डिफाइन नहीं, पीरियड जो चाहे ले सकते हैं, फंडामेंटल पीरियड डिफाइन नहीं कर सकते. y इक्वल टू x, वैल्यू रिपीट हो रही है या नहीं हो रही है? थिंक अबाउट इट. देखो ये, फिर उसके बाद इधर भी, तो पीरियोडिक होना चाहिए. बट नो, ग्राफ रिपीट नहीं हो रहा है, वैल्यू रिपीट नहीं हो रही है. अगर ये पार्ट को रिपीट करोगे तो यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा. इफ यू लुक एट अदर पार्ट्स, कि भाई ये वाला पोर्शन, तो ये सेम वैल्यू नहीं है, वैल्यू रिपीट नहीं हो रहा है. वैल्यू कहाँ रिपीट हो रहा है? ये जो मैंने पहले रेड वाले हाईलाइट किए. तो एक्चुअल ग्राफ रेड वाला तो है नहीं, इसलिए ये फंक्शन क्या होगा? नॉन पीरियोडिक. ये भी अगेन लीनियर है, नॉन पीरियोडिक, अगेन नॉन पीरियोडिक. एक बार जो वैल्यू आई है वो आगे सिर्फ एक ही बार आया, उसके बाद दोबारा वो वैल्यू तीसरी बार नहीं आएगा. नॉन पीरियोडिक,
नॉन पीरियोडिक, नॉन पीरियोडिक, नॉन पीरियोडिक, नॉन पीरियोडिक, नॉन पीरियोडिक, नॉन पीरियोडिक। पीरियोडिक लग रहा है? सेम टू सेम वैल्यू बार बार रिपीट हो रही है। यस और नो डिसाइड। देखो यही वैल्यू बार बार रिपीट हो रहा है। एक्चुअली नो, बार बार रिपीट नहीं हो रहा है, वैल्यू चेंज हो रही है। पहले वैल्यू 0 था, यहाँ वैल्यू 1 हुआ, यहाँ वैल्यू 2 हुआ, यहाँ वैल्यू 3 हुआ। हाँ, ये हर पॉइंट पे वैल्यू रिपीट हो रही है, हर जगह वैल्यू 0 है, बट वो इनफाइनाइटली हमेशा के लिए नहीं है, बस इस इंटरवल में ही है। इसलिए अगेन अ नॉन पीरियोडिक फंक्शन। Now this is y equal to 1 by x non-periodic log x log x log x non-periodic थे। Now this is sin x। sin x आपको पता है कि अगर आप एक छोटा सा पोर्शन पिक करोगे, if you pick a small portion, let's say this, तो यही पार्ट आगे बार बार रिपीट होगा, आगे भी और पीछे भी। तो दिस स्मॉल पार्ट ऑफ -π to π और यू कैन से 0 to 2π, ये पार्ट बार बार इनफाइनाइटली रिपीट होगा, एंड सो दिस इज अ पीरियोडिक फंक्शन। cos x में भी सेम स्टोरी है, cos x में भी सेम स्टोरी है, वो भी पीरियोडिक होगा। इज दिस क्लियर? इट इज गोइंग टू बी पीरियोडिक। ओके, नेक्स्ट tan x है, पीरियोडिक है, cot x है, पीरियोडिक है, sec x है, पीरियोडिक है, cosec x है, पीरियोडिक है। देखो एक ही पार्ट है जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। ज्यादा डिटेल आपको आगे बताया जाएगा। Now these are inverse functions. Inverse trigonometry में sin inverse, cos inverse, tan inverse, cot inverse, sec inverse and cosec inverse। कोई भी इन्वर्टिबल फंक्शन पीरियोडिक नहीं हो सकता है, क्योंकि फंक्शन अगर पीरियोडिक है तो वैल्यू रिपीट करेगा, वैल्यू रिपीट करेगा तो मेनी वन होगा, और आपको पता है मेनी वन फंक्शन का इनवर्स होता ही नहीं है। तो साइन इनवर्स से लेकर के कॉसेक इनवर्स तक सारे के सारे ग्राफ्स नॉन पीरियोडिक। सो द बेसिक रूल इज कि कोई फंक्शन है, उसमें x में if I add a fixed number t and it does not make any difference, then that function is called a periodic function, और जो नंबर t है that will be called the period of the function. Now this t can be added one time. अब x की जगह अगर मैं x plus 2t रखता हूँ, 3t रखता हूँ या nt रखता हूँ, still it is giving the same value। मतलब t के बाद वही वैल्यू, 2t के बाद भी वही वैल्यू, 3t के बाद भी वही वैल्यू, 1000t के बाद भी सेम वैल्यू। लाइक इन केस ऑफ साइन थीटा, साइन 30 का कोई वैल्यू है 1/2। अब साइन 30 का वैल्यू 1/2 है तो 2π + 30 के बाद भी सेम वैल्यू होगा, 4π + 30 पे भी सेम वैल्यू होगा, 6π + 30 पे भी सेम वैल्यू होगा, 1000π + 30 पे भी सेम वैल्यू होगा, एंड -1000π + 30 पे भी सेम वैल्यू होगा। सो आफ्टर एनी नंबर ऑफ t द वैल्यू रिमेन्स सेम। दिस इज definition, mathematical definition of periodic function. This implies that fx is periodic with t as period। उसका t पीरियड हो जाएगा। अब पीरियड की बात करेंगे तो साइन थीटा का वैल्यू 2π पे भी रिपीट होता है, 4π के बाद भी रिपीट ही होने वाला है। तो आफ्टर एवरी 4π इट विल रिपीट, after every 6π it will repeat, after every pi it will not repeat, after every 5π it will not repeat, but every 2π, every 4π, every 6π, every 50π it will repeat. So I can say कि उसका पीरियड 2π भी है, 4π भी है, 6π भी है और 8π भी है। But to simplify all this, we say that the smallest positive value of t is called fundamental period, or in short period. So in most of the cases you will see कि find period of this function. In some cases you will see कि find period of the function. तो कहीं लगा होगा फंडामेंटल पीरियड, कहीं लिखा होगा पीरियड, बट एवरीवेयर यू हैव टू फाइंड
फंडामेंटल पीरियड ओनली, बिकॉज अगर आपको फंडामेंटल पीरियड पता है 5, तो फिर यू नो ऑल द पीरियड्स, बिकॉज अगर 5 पीरियड है तो 5 के सारे मल्टीपल्स 5, 10, 15, 20, 25, 30 all will be period. So telling period is not enough, because if I say कि period is 4 pi, you cannot say कि उसका period 2 pi होगा या नहीं होगा, उसका period pi होगा या नहीं होगा. But if I say period is pi, you can definitely say कि pi का any multiple will be the period. So we always tell the smallest positive value of t, which is actually called fundamental period. In short, we can also call it period. तो यूजिंग द ग्राफ, जो मैंने आपको ग्राफ्स बताए हैं, यूजिंग ऑल दोज वी कैन फाइंड कि साइन एक्स, कॉस एक्स, सेक एक्स एंड कॉसेक एक्स, इन सबका पीरियड 2 पाई होता है. यू कैन सी कि आफ्टर एवरी 2 पाई द वैल्यू रिपीट इटसेल्फ. Whereas when we talk about tan x and cot x, tan x और cot x में आप देखोगे तो उसका पीरियड पाई होता है. Go to the graph and look at this. Go to the graph and look at this कि फर्स्ट साइन cos sec cosec 2 पाई पे रिपीट होते हैं और tan cot पाई पे रिपीट होते हैं. और फिर एक फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन जो मैंने बोला उसका पीरियड 1 होगा, दैट रिपीट्स आफ्टर एवरी 1. These are the basic knowledge, basic results, basic standard results of the function which are periodic. अब इसमें थोड़े modifications we are going to do. Suppose sin power nx हो गया, cos power nx हो गया, sec power nx हो गया और cosec power nx हो गया. अब पीरियड क्या होगा? साइन स्क्वायर है, साइन क्यूब है, साइन पावर 4 है. सो आइडिया इज इसका पीरियड 2 पाई अगर n बिलोंग टू, सॉरी, इफ n इज इवन, n इज ऑड एक्चुअली, और अगर n इवन हुआ तो पीरियड पाई हो जाएगा. आइडिया इज 2 पाई तो रहे, साइन x का कोई भी फंक्शन लोगे उसका पीरियड 2 पाई तो रहने वाला ही है. अब उससे कम होने की पॉसिबिलिटी है, तो जब हम पार इवन करेंगे, इवन पार करोगे तो पीरियड पाई हो जाएगा. नाउ कम्स tan पावर nx और cot पावर nx. इसका पीरियड पाई ही होता है चाहे n ऑड हो या इवन हो. तो आई कुड हैव एक्सक्लूडेड दिस फर्स्ट 2 रोज, वो यहाँ पे आ गया. देखो यहाँ सबका पार 1 1 1 1 है, तो n का वैल्यू 1 के लिए आपको पता है कि 1 इज ऑड, सो 2 पाई होगा. बट एक बेसिक नॉलेज के लिए मैंने लिख दिया. देन द नेक्स्ट इज mod of sin x, mod of cos x, mod of tan x up to mod of cosec x. इन सबका पीरियड पाई होता है. You draw the graph of mod sin x, mod cos x, mod tan x. Sin x की मैं बात करता हूँ, so that is your sin x. If I have to draw its modulus, we know that कि modulus में नीचे का ग्राफ ऊपर चला जाएगा. This graph will go here and this graph will go there. What do you see now? That पहले तो ये पूरा पोर्शन रिपीट होता था. Now this is the smallest portion that is repeating and this portion is simply 0 to pi. तो length is pi. तो अगर मॉड लेंगे तो ये पाई हो जाएगा. So these are some basic information, some basic results that you need to remember all the time. इसके अलावा 2-3 और रिजल्ट्स हैं that I will keep on going about it. तो वो डिस्कस बाद में करेंगे, बट एज अ फॉर्मूला आई एम गोइंग टू राइट देम एंड टेल यू. एफ एक्स अगर एक पीरियोडिक फंक्शन है और उसका फंडामेंटल पीरियड इज टी, एफ एक्स इज अ पीरियोडिक फंक्शन विच फंडामेंटल पीरियड टी, देन ए प्लस बी टाइम्स एफ ऑफ सी एक्स प्लस डी का पीरियड विल बी टी बाय मॉड सी. A plus B f of C x plus D का पीरियड विल बी T अपॉन मॉड C.
मतलब किसी फंक्शन में कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई करोगे, पीरियड में देयर विल बी नो चेंज। फंक्शन में कुछ कांस्टेंट ऐड करो, x में कुछ कांस्टेंट ऐड करो, नॉट गोइंग टू मेक एनी डिफरेंस। द ओनली डिफरेंस विल अकर व्हेन यू मल्टीप्लाई समथिंग टू x। जब x में कुछ मल्टीप्लाई करोगे देन पीरियड विल चेंज। एंड सेकेंड, अगर fx का पीरियड t1 है और gx का पीरियड t2 है, तो fx स्टार gx का पीरियड, स्टार मतलब मल्टीप्लिकेशन नहीं, स्टार मीन्स एनी ऑपरेशन, plus, minus, into, divide, par, whatever you do, and that is, think of it, LCM of T1 and T2. That will be LCM of T1 and T2 or less. So when we are going to find period of combination of two functions fx and gx, then the period will be LCM of T1 and T2, LCM of individual periods, या फिर उससे कम। अब उससे कम का there is no rule for that. कुछ क्वेश्चंस में, कुछ बुक्स में आप देखेंगे कहीं कुछ लिखा होता है, but these are not correct. For less you have to check individually. There is no other way of trying to understand कि छोटा अगर है तो क्या होगा। यूजुअली बुक्स में लिखा होता है अगर फंक्शन इवन है तो हाफ द एलसीएम, fx कन्वर्ट टू gx, gx कन्वर्ट टू fx तो हाफ द पीरियड। नथिंग वर्क्स, everything is false except you have to check it individually कि उससे छोटे में क्या होगा। Now you will say कि what are we going to check? Suppose the period comes out to be LCM comes out to be 5. Then what we do? What smaller part we check? तो 5 से छोटा 4 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। तो यूजुअली 5 के सब मल्टीपल्स में चेक करना चाहिए, क्योंकि अगर 4 इज अ पीरियड तो 5 कैन नॉट बी पीरियड। सो व्हाट वी डू इज कि 4 फंडामेंटल की बात कर रहा हूं मैं। सो आइडिया है अगर 5 फंडामेंटल पीरियड अगर पीरियड है तो फंडामेंटल पीरियड जो होगा वो 5 का सब मल्टीपल होगा। तो यू कैन चेक फॉर 5/2, 5/3, 5/4, 5/5, 5/6, 5/7 and so on up to infinity. But obviously you cannot do that. So what we do? We look in the options. Options को देखोगे और options में LCM से छोटा जो भी केस है उसके लिए we will check. But I will give you some special cases जिसके बाद you will not need this or less वाला portion, LCM से अपना काम चल जाएगा। So this is the definition and this is the formula that we are going to use. But कोई भी कॉन्सेप्ट समझ में तभी आता है जब उसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। विदाउट सॉल्विंग द क्वेश्चन ऑन योर ओन यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड एनी कॉन्सेप्ट। थियरी है, क्लास में पढ़ाया जा रहा है, वो सब कुछ समझ में आता है, बट जब क्वेश्चन सॉल्व करने बैठते हैं देन यू फील द प्रॉब्लम कि व्हाट इज एग्जैक्टली गोइंग ऑन। सो यू हैव टू सॉल्व मोर एंड मोर क्वेश्चंस टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। बस बिफोर दैट आई एम गोइंग टू सॉल्व सो मेनी क्वेश्चंस, तो आपको एक आइडिया बिल्डअप हो जाएगा, एक कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो जाएगा एंड देन यू विल बी एबल टू मैनेज द क्वेश्चंस ऑन योर ओन। सो वी आर गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चंस ऑफ periodic functions and we are going to find its period, that is actually fundamental period. Okay, so now we are going to find period of some functions. Sin x का period था 2 pi, 2 sin x का period हो जाएगा 2 pi upon 2, that is pi. Actually no, it will still be 2 pi. 3 plus 2 sin x का पीरियड क्या होगा? It will still be 2 pi. अच्छा, 3 plus 2 sin 4x का पीरियड क्या हो जाएगा? And now it is going to be 2 pi upon 4 का mod and that comes out to be pi/2. जब तक x में कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं करोगे पीरियड इज नॉट गोइंग टू चेंज। ना इफ आई से
3 minus 4 sine 5x minus 6, and the period will be the period, or let's say 6 minus 5x, and the period will be 2 pi upon minus 5. Actually no, the idea was mod of minus 5, that is 5, and that is the answer. तो साइन कॉस tan cot sec cosec फ्रैक्शन और उनके मॉड अगर वो याद है, you will be able to manage these questions. The idea is कि x में जो मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे वो पीरियड में डिवाइड मल्टीप्लाई हो जाएगा. नाउ लेट्स से कि 4 minus 3 tan 4 minus 3x upon 5. Now this is your question. Try to find the period of this function. So pause कर लो and find करो. I'm going to do this. So tan x का जो पीरियड होता है वो पाई होता है, और x में क्या मल्टीप्लाई किया है -3, तो क्या डिवाइड करेंगे, -3 का mod 3. एक्चुअली नो, x का मल्टीप्लाई किया है -3/5 से, तो डिवाइड करेंगे -3/π के मॉड से. द आंसर कम्स आउट टू बी 5π/3. x का मल्टीप्लायर जो है, x का जो कोफिशिएंट है उससे डिवाइड करेंगे. नाउ सपोज वी हैव 4 cosec x/2 का मॉड. What will happen? So pause and solve. सिंपल है. So idea है कि cosec का पीरियड 2 पाई होता था cosec x का, लेकिन मॉड है और मॉड का पीरियड पाई होता था. x को 1/2 से मल्टीप्लाई किया है तो 1/2 के मॉड से डिवाइड कर देंगे, और यू कैन से x को 2 डिवाइड किया है तो पीरियड को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे. सो दैट वे आई विल गेट 2 पाई इज द आंसर. So these are some examples. Now you need to understand कि periodic function एक है sin x. अब sin x का पीरियड 2 पाई है, तो अब sin x के ऊपर हम कोई भी फंक्शन अप्लाई करें, वॉट एवर फंक्शन यू अप्लाई ऑन sin, फॉर एग्जाम्पल +1, इसका स्क्वायर, इसका लॉग इंटू 3⁻⁴, इसका बॉक्स, वॉट एवर यू डू, आंसर विल बी 2 पाई और लेस. 2 पाई तो रहने वाला ही है. साइन एक्स के ऊपर जो भी फंक्शन आपको लगाना है लगा दो. इट इज एनी हाउ गोइंग टू बी 2 पाई विल बी द पीरियड. फंडामेंटल कुड बी सब मल्टीपल ऑफ दैट. फंडामेंटल उससे कम हो सकता है, बट 2 पाई तो रहने वाला ही है. मीन्स इफ आई से कि फ्रैक्शन x है, अब फ्रैक्शन x में इफ आई टेक इट्स साइन इनवर्स, इफ यू नो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यू विल अंडरस्टैंड दिस. देन इफ आई से कि मैंने इसका बॉक्स ले लिया, इसमें 2 मल्टीप्लाई कर दिया, 3 डिवाइड कर दिया और इस पूरे का रूट ले लिया. अब फ्रैक्शनल x का पीरियड 1 था, तो 1 तो रहने वाला ही है. 1 और लेस विल बी द आंसर. तो एक पीरियोडिक फंक्शन के ऊपर कुछ भी फंक्शन लगाओगे दैट इज गोइंग टू बी पीरियोडिक, बट पीरियोडिक फंक्शन के अंदर x में चेंजेस करोगे तो इट मे और मे नॉट बी पीरियोडिक. सो आई एम गोइंग टू गिव यू सम एग्जांपल. साइन x तो पीरियोडिक होता है, बट इफ यू से साइन x², cos x पीरियोडिक होता है इफ यू से cos x³, tan x पीरियोडिक होता है बट इफ यू से tan 1/x, cot x पीरियोडिक होता है बट इफ यू से cot of log x, sec x पीरियोडिक होता है बट इफ यू से रूट 2x + 3, cosec x पीरियोडिक होता है बट इफ यू से log हो गया cosec e⁻x. So these functions will not be periodic. तो
किसी फंक्शन जो स्टैंडर्ड फंक्शंस है उनके अंदर x की जगह अगर आप कोई नॉन पीरियोडिक फंक्शन रखते हो तो वो प्रॉब्लम है, दैट विल नॉट बी पीरियोडिक. बट sin x periodic है, and if I replace x by a periodic function then that will be periodic, because what I can say कि ये चेंज मैंने sin x में नहीं किया है, ये चेंज हमने फ्रैक्शन x में किया है. फ्रैक्शन x का पीरियड 1 था और उसके ऊपर हमने sin अप्लाई किया. दैट कम्स टू दिस पार्ट. तो कोई भी फंक्शन, हमेशा कोई फंक्शन पीरियोडिक होगा ही, इट इज नॉट इंपॉर्टेंट. बहुत कम फंक्शंस पीरियोडिक होते हैं, तो यू हैव टू फाइंड पीरियोडिसिटी वेरी विद ऑल द कॉन्सेप्ट्स इन योर माइंड. बहुत ध्यान से सॉल्व करने का होता है, बहुत फोकस के साथ. यू कैन नॉट जस्ट से कि साइन एक्स पीरियोडिक है तो साइन एक्स 2 पाई होता है तो साइन एक्स स्क्वायर का रूट 2 पाई हो गया. नॉट गोइंग टू हैपन. सो यू हैव टू मेक श्योर दैट वट एवर यू आर फाइंडिंग इज एक्चुअली करेक्ट. देन ये कुछ क्वेश्चंस किए हमने. ना सपोज वी हैव साइन 2x प्लस cos x by 2. Sin 2x plus cos x by 2. What would be the period of this? जो थर्ड प्रॉपर्टी मैंने बताया था, that is कि fx और gx are periodic functions. उनके periods t1 और t2 हैं. In this case 2 pi upon 2. 2 pi upon 1 by 2, that is 4 pi. तो जब दोनों का कॉम्बिनेशन होगा, स्टार मैंने मार्क किया था, उसमें प्लस माइनस इनटू डिवाइड सब आ जाएगा. सो पीरियड विल बी एलसीएम ऑफ दीज टू, दैट इज 4 पाई और लेस. अब लेस का क्या करेंगे? लेस के लिए ऑप्शंस देख करके वी विल चेक कि भाई 4 पाई से कम कोई ऑप्शन है तो वो ऑप्शन सही है या गलत है, राइट है या रॉन्ग है. उसके लिए एग्जांपल्स देखूंगा मैं. यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो ओके है. तो आई विल गिव यू सम एग्जांपल्स जहां चेक करने से डिफरेंसेस क्रिएट होंगे. ना इफ आई से sin x by 2 माइनस tan 2x by 3, sin x by 2 minus tan 2x by 3. And this is basically 4 pi and this is pi upon 2 by 3, मतलब 3 pi by 2. So finally answer will be LCM of these or less. अब LCM निकालना आपको आता है ऐसा you may think, but if you have not seen the basic fundamental of mathematics वाला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है, LCM फाइंड करने वाला वीडियो नहीं देखा है, तो प्लीज गो एंड सी दैट वीडियो, वॉच दैट वीडियो. बिकॉज LCM जो आपको आता है वो मोस्टली इंटीजर्स का LCM निकालना आता है. फ्रैक्शंस का LCM निकालना मोस्ट ऑफ यू डू नॉट नो. सो आई एम गोइंग टू डायरेक्टली राइट द आंसर. कैसे? एंड द आंसर इज 6 pi. Answer is 6 pi. Okay? Actually not. Answer is 12 pi. So if you know that this is 12 pi, that is very good. Otherwise you have to go and see the video of finding LCM. Then I have sin 2x by 3 minus tan 5x by 4, and let's take modulus of this, let's take cube of this. Pause the video and try to find the answer. I am going to solve this to sin mod sin x का pi होता था. अब x में 2 by 3 है तो यहाँ 2 by 3 डिवाइड कर देंगे, 3 pi by 2. इसका पीरियड होता है पाई. क्यूब किया तो भी पाई होगा, तो पाई को 5 by 4 से डिवाइड करेंगे. And then we have to take LCM or the less. तो LCM फाइंड करेंगे तो LCM comes out to be again 12 pi. It's not always 12 pi. It's okay. By chance we are getting 2 pi. So this is how we are going to utilize the first formula, a plus b times f of cx plus d, and this formula fx plus g star gx. So mainly the concept is these two.
and then we are going to solve many more questions to understand, and then some special question जहाँ पे ये और less वाला concept आपको काम आएगा. You have to always remember those two particular questions, so you will be able to manage this. So let's start some more questions. Okay, so now we have these more questions, like 6 plus 6, 12 questions more we are going to solve. एक बार पॉज कर लो वीडियो को, खुद से ट्राई करो, सब कुछ आसानी से आंसर आ जाएगा. पॉज करो, सॉल्व करो. आई एम गोइंग टू डू दिस. फर्स्ट वाले केस में द पीरियड इज सिंपली 2 पाई, क्योंकि पार्ट 2/3 है, पार इज नॉट इवन, सो आंसर विल बी सिंपली 2 पाई. सेकेंड वाले केस में इट इज नॉन पीरियोडिक, क्योंकि cos x पीरियोडिक होता है. cos के अंदर x की जगह कोई पीरियोडिक फंक्शन लोगे तो दैट इज ओके, बट 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 इज नॉन पीरियोडिक. अगेन दिस इज नॉन पीरियोडिक, अगेन दिस इज नॉन पीरियोडिक. और ये मॉड सेक x का पीरियड पाई होता था, 2x है तो अपॉन 2 हो गया. -3 क्या है? What is this -3? -3 is basically a constant function. fx equals to -3. इसका पीरियड क्या होगा? तो एक्चुअली इफ यू ड्रॉ y इक्वल टू -3, द वैल्यू इज फिक्स्ड. वैल्यू अगर फिक्स है तो द सेम वैल्यू इज रिपीटिंग आफ्टर एवरी पॉइंट. हर पॉइंट के बाद वैल्यू रिपीट हो रहा है. मतलब इसका पीरियड कुड बी एनी नंबर. द पीरियड ऑफ अ कांस्टेंट फंक्शन इज एनी नंबर, बिकॉज आफ्टर 1 its value will be -3, after 2 its value will be -3. अब 1 का कोई भी मल्टीपल लोगे इसका वैल्यू -3 होगा. आफ्टर पाई its value will be -3. x plus 5 pi value is -3. x plus 7 pi, 9 pi, 10 pi, 11 pi value is -3. So idea is कि for constant functions, for constant function it is periodic. Period is any number, whatever you like. फंडामेंटल पीरियड की बात करते तो फंडामेंटल पीरियड क्या होगा? इट कुड बी एनी नंबर. सो व्हाट इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर? You can say 0, but actually that is not. I said smallest positive number. 0 is non-positive. So the fundamental period is basically not defined. कांस्टेंट फंक्शन का फंडामेंटल पीरियड डिफाइन नहीं होता है. दो इट इज अ कांस्टेंट फंक्शन, इट इज अ पीरियोडिक फंक्शन, इट्स पीरियड कैन बी टेकन एज व्हाट एवर यू वांट, बट द फंडामेंटल पीरियड इज नॉट डिफाइंड. वो h जैसा कुछ होगा बट एक्चुअली नॉट डिफाइंड कि व्हाट वुड बी द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर. नेक्स्ट, sin x by 3 will be 6 pi, sin x by 2 will be 4 pi, and LCM will be अगेन 12 पाई. कई बार 12 पाई आ गया. अगे log sin स्क्वायर x. अब log x नॉन पीरियोडिक, बट x की जगह sin स्क्वायर x लिखा हुआ है. आई विल से sin स्क्वायर का पीरियड पाई होता है. इसके ऊपर आप कोई भी फंक्शन लगाओ, पाई तो होगा ही, उससे कम की भी पॉसिबिलिटी है. और लेस वाला आइडिया वो नेक्स्ट स्क्रीन में करते. ई पावर फ्रैक्शन एक्स में पीरियड विल बी 1, क्योंकि फ्रैक्शन एक्स का पीरियड 1 होता है. अब उसके बाहर आपने ई के पावर लिख दिया, नो इश्यू एट ऑल. बॉक्स एक्स माइनस एक्स इज समथिंग. बॉक्स तो पीरियोडिक नहीं होता है, बट बॉक्स एक्स माइनस एक्स इज बेसिकली माइनस ऑफ फ्रैक्शन एक्स, सो पीरियड विल स्टिल बी 1. नेक्स्ट वन, व्हाट आई एम गोइंग टू डू हियर इज, बॉक्स के अंदर से आई कैन टेक इंटीजर आउट. I can take the integer out of the box. Now what we see, 2x का box minus 2x का fraction, sorry, this is not box. ये simple एक number. So, okay. So question change हो गया उस केस में, तो that was actually non-periodic.
Now this is 2x minus fraction 2x is basically box 2x plus 1, still non-periodic. I was trying to make some question but वो काम नहीं किया. The actual question should be actually 2x plus 1 minus box of 2x, and this would be actually 2x minus box 2x is fraction 2x or plus 1, and then the period will be 1 by 2, क्योंकि fraction x का period क्या होता है 1, तो fraction 2x का हो जाएगा 1 by 2, and this साइन स्क्वायर का पीरियड पाई, कॉस स्क्वायर का पीरियड पाई, बट वेट, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर तो 1 होता है, एंड द पीरियड विल बी एनी नंबर, बट फंडामेंटल पीरियड इज नॉट डिफाइंड. सो ये क्वेश्चन मैंने लास्ट में लिखा था बिकॉज द आइडिया वॉज टू चेंज फ्रॉम दिस टू द नेक्स्ट स्क्रीन. द आइडिया इज कि अगर आपको साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर लिखा हुआ है और आपके दिमाग में बात नहीं आई कि अगर और लेस वाला कॉन्सेप्ट होता है या इसका वैल्यू 1 होता है, तो व्हाट वी डू, वी विल से इसका पीरियड पाई, इसका पीरियड पाई प्लस है, एलसीएम लिया तो पीरियड इज पाई, और लेस आपको करना होता है. तो नाउ आई एम गोइंग टू डू सम क्वेश्चंस ऑन द नेक्स्ट स्क्रीन टू आइडेंटिफाई कि और लेस वाला आइडिया कहाँ पे आएगा, कैसे काम करेगा, आपको कैसे यूज करना है, हाउ आर यू गोइंग टू आइडेंटिफाई. अभी तक कहीं भी हमने और लेस वाला यूज नहीं किया बिकॉज आई नो कि यहाँ पे और लेस वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, बट इन सम केसेस देयर विल बी. तो हाउ डू यू आइडेंटिफाई कि हमें लेस वाला चेक करना है या नहीं करना है. इफ यू हैव टू डू, तो हाउ डू वी चेक कि लेस वाला पॉसिबिलिटी है या नहीं है. सो दैट वी आर गोइंग ऑन द नेक्स्ट स्क्रीन. Okay, so now we have two very standard questions. Mod of sin x plus mod of cos x and sin power 4x plus cos power 4x. These are two very standard questions जो कई बार कई सारे एग्जाम्स में पूछे गए हैं. एक ही एग्जाम में 2 बार 3 बार अलग अलग ईयर्स में भी पूछे गए हैं. सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस. आइडिया इज कि मॉड साइन एक्स का पीरियड पाई, मॉड कॉस एक्स का पीरियड पाई, एंड इफ आई टेक एलसीएम दैट विल बी पाई. तो पाई तो पीरियड होगा, नो wrong in that, but we are going to find the fundamental period, और fundamental period के लिए LCM और less का concept आता है. So this is one question where that is going to be very important. अब पाई से छोटा है तो what we do is let's check for पाई बाई 2. ना हाउ डू यू नो कि मुझे पाई बाई 2 के लिए चेक करना है या पाई बाई 3 के लिए चेक करना है या पाई बाई 4 के लिए चेक करना है. एक्चुअली फिर अगर थियोरेटिकली बात करो तो यू हैव टू चेक फॉर एवरी नंबर विच इज नॉट पॉसिबल. सो व्हाट वी आर एक्चुअली गोइंग टू डू इज प्रैक्टिकली आपके ऑप्शंस में आप देखोगे यू हैव 4 ऑप्शंस ओनली. 4 ऑप्शंस में इफ यू सी तो यू विल फाइंड कि पाई से छोटा एक पाई बाई 2 होगा, फिर पाई बाई 3 हो सकता है, पाई बाई 4 हो सकता है, तो मैक्सिमम 4 ऑप्शंस. सो लेट्स चेक फॉर पाई बाई 2, और कैसे चेक करते हैं दैट आई एम गोइंग टू टेल यू. द आइडिया इज कि अगर पाई बाई 2 का पीरियड है तो x में पाई बाई 2 ऐड करने से देयर शुड नॉट बी एनी चेंज. द कॉन्सेप्ट वाज f of x plus t equal to fx. In this case, if I say भाई पाई बाई 2 पीरियड है तो आई एम गोइंग टू चेक फॉर f of x प्लस पाई बाई 2. अगर वो fx आ गया तो वेल एंड गुड. सो f of x प्लस पाई बाई 2 विल बी मॉड ऑफ साइन x प्लस पाई बाई 2 का मॉड प्लस मॉड ऑफ कॉस x प्लस पाई बाई 2. ये बहुत प्रॉब्लम होती है बच्चों को समझने में, आई डोंट नो व्हाई, बट सीधा सा बात है. एफ एक्स में x लिखा हुआ है, एफ ऑफ एक्स प्लस पाई बाई 2 में x की जगह x प्लस पाई बाई 2 लिखा हुआ है. सो दैट इज एफ ऑफ एक्स प्लस पाई बाई 2. साइन पाई बाई 2 प्लस x इज बेसिकली कॉस x, और कॉस पाई बाई 2 प्लस x इज नॉट साइन x बट माइनस साइन x. सेकेंड क्वाड्रेंट हुआ. तो दिस इज मॉड ऑफ कॉस x. मॉड ऑफ माइनस साइन x क्या होगा?
mod of minus sin x is basically sin x only. And what we get? It is same as fx. तो f of x plus pi by 2 equal to fx है. It means pi by 2 is period. But fundamental है, ये अभी भी क्लियर नहीं है. This is not फिक्स, इट इज नॉट क्लियर कि वो फंडामेंटल होगा. उससे छोटा अगर कोई ऑप्शन है तो हमें चेक करना चाहिए. तो लेट्स अज्यूम कि पाई बाय 4 भी लिखा हुआ है. तो चेक फॉर पाई बाय 4. चलो पॉज करो वीडियो को, ट्राई टू फाइंड योर सेल्फ. व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज एफ ऑफ एक्स प्लस पाई बाय 4 इक्वल टू एफ एक्स चेक करते. तो f of x plus pi by 4, if I calculate, that will be mod sin x plus pi by 4 plus mod cos x plus pi by 4, which is clearly not equal to mod sin x plus mod cos x. So it is clearly not. So I can say using this it is fundamental also. क्योंकि पाई बाय 2 से छोटा जो ऑप्शन में आपस अगर पाई बाय 4 था तो पाई बाय 4 नहीं आया. इसका मतलब पाई बाय 2 पीरियड एज वेल एज द फंडामेंटल पीरियड. In the very similar way you will find fx equal to this also. इसका भी पीरियड पाई बाय 2 होगा. फंडामेंटल पीरियड विल बी अगेन पाई बाय 2, क्योंकि एलसीएम लेने पे पाई आएगा, फिर चेक करोगे एवरीथिंग विल मैच. सो व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू दैट यू नीड टू रिमेंबर दीज टू फंक्शंस एंड यू विल बी ऑलराइट. आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा. जस्ट रिमेंबर दीज टू फंक्शंस. There is no rule for or less वाला कॉन्सेप्ट कि क्या होगा, हाफ होता है, क्या होता है. But you have to remember these two results and you will be able to do very well in questions of period. तो अगर ये 2 क्वेश्चन आए तो सीधा सीधा आंसर आ जाएगा. अदरवाइज आपके पास मेथड्स है. अब इसमें थोड़ा ट्विस्ट करता हूं मैं. लेट्स से मॉड साइन एक्स माइनस मॉड कॉस एक्स है. मॉड ऑफ साइन 2x प्लस मॉड ऑफ cos 2x है. मॉड ऑफ साइन 3x माइनस 4 प्लस मॉड ऑफ cos 4 माइनस 3x है. साइन पावर 4 2x माइनस cos पावर 4 2x है. These are some transformation, some changes to these questions. Now you have to find the period of these. पूरा प्रोसेस यूज करना है, पीरियड फाइंड करना है. पॉज द वीडियो, ट्राई टू फाइंड. इट विल टेक 10 minutes at least. So pause and try to solve. I am going to tell you. इसका पीरियड पाई बाय 2 नहीं होगा, पाई होगा. बिकॉज पाई तो ओके है, पाई और पाई का एलसीएम पाई, बीच में प्लस है, माइनस है, इनटू है, डिवाइड है, नथिंग मैटर्स. बट पाई बाय 2 के लिए दिस माइनस के साथ शुड बी इक्वल टू दिस. बट ध्यान से देखोगे तो पता चलेगा कि दैट इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ एक्स फॉर पाई बाय 2. इट विल बी माइनस एफ एक्स. इन दिस केस इट विल बी पाई बाय 2 नहीं होगा, पाई बाय 4 होगा. मॉड साइन एक्स प्लस मॉड कॉस एक्स का पाई बाय 2 था. जब एक्स में 2 मल्टीप्लाई किया तो पीरियड 2 से डिवाइड हो गया, पाई बाय 4 हो गया. दिस वन, ये 3x माइनस 4 है, ये 4 माइनस 3x है. एक ही बात है. cos ऑफ माइनस एक्स इज cos x, तो वी कैन से साइन थीटा का मॉड प्लस cos थीटा का मॉड. आंसर इज पाई बाय 2. साथ में ये 3 डिवाइड भी करना पड़ेगा एंड दैट गिव्स मी पाई बाय 6. एंड लास्ट वन, साइन पावर 4 प्लस cos पावर 4 का पाई बाय 2 होता है. माइनस का आई डोंट नो. व्हाट वी कैन डू इज वी कैन से कि साइन पावर 4 का पाई, साइन पावर 4 2x का पाई बाय 2, इसका भी पाई बाय 2, तो एलसीएम भी पाई बाय 2. नाउ यू कैन चेक फॉर पाई बाय 2 का सब मल्टीपल. लेट्स से पाई बाय 4
वो करेक्ट नहीं आएगा, रॉन्ग आएगा, एंड सो द आंसर इज पाई बाय 2. Now we can approach it by other way also. Sin power 4 minus cos power 4 को I can say sin square plus cos square, sin square minus cos square. Sin square 2x plus cos square 2x this, and sin square x minus cos square x is minus cos 2 theta. What do I get? 1 minus cos 4x. अब 1 तो पीरियोडिक होता है, कांस्टेंट है, कोई भी फंडामेंटल मान सकते हैं. सो आइडिया इज कि cos 4x का पीरियड क्या होगा? 2 पाई बाई 4, दैट इज पाई बाई 2. सो दिस इज समथिंग आई एम गोइंग टू टेल यू. ध्यान से सुनना. अगर कोई फंक्शन है, उसको जितना मैक्सिमम आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, सिंप्लीफाई कर लेना. उसके बाद इफ यू फाइंड द आंसर, द एक्यूरेसी विल बी हायर. समटाइम्स वी कांट सी कि सब मल्टीपल आ रहा है. समटाइम्स f of x plus pi by 2 निकालोगे and you won't be able to see कि this is actually fx. So what I am telling you, first thing what we do is we try to simplify the question as much as possible and then try to find the period. That will be a far better idea. Like in this case, if you see sin power 4x plus cos power 4x का फॉर्मूला था 1 minus 2 sin square x cos square x. sin square plus cos square 1 होता है. sin power 4 plus cos power 4 is 1 minus 2 sin square theta cos square theta होता है. sin power 6 plus cos power 6 1 minus 3 sin square theta cos square theta होता है. ये सब ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है हमने. sin power 8 plus cos power 8 is 1 minus 4 sin square theta cos square theta नहीं होता है. This is not true. There is no pattern in this. So that is not there. Okay. So this now what we do? ट्रिग्नोमेट्री अगर आपने पढ़ा होगा तो I have told कि sin theta into cos theta को we write half sin theta. So I can write half sin 2 theta actually to half sin 2x का square. That is 1 minus 1 by 2 sin square 2x. अब देखना इसका पीरियड कैसे फाइंड करोगे. sin स्क्वायर का पीरियड क्या होता है? पाई, और ये 2 डिवाइड हो गया तो आंसर इज पाई बाय 2. So there is no need to वर्क हार्डर देन दिस. पहले सिंप्लीफाई कर सकते हो तो सिंप्लीफाई कर लो, देन ट्राई टू फाइंड द पीरियड, तो प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी. नाउ इफ आई टॉक अबाउट दिस क्वेश्चन, इसको सिंप्लीफाई करने जाओगे तो मॉड हटाना पड़ेगा. मॉड हटाओगे तो इट बिकम वेरी डिफिकल्ट. सो यू हैव टू यूज दिस वे ओनली एंड दिस इज गुड. बट एट द सेम टाइम you just have to remember these two. ये दो याद कर लो, it will be comfortable enough. So now we are going to solve more questions and more challenges. Okay, so we have these 3 more questions. Let's say 1, 2 and 3. First जो question है, इस टाइप का एक question already we have covered. So I hope you will be able to manage it. Second question में थोड़ा tricky है, I'll discuss that. और थर्ड क्वेश्चन भी फर्स्ट जैसा ही है, तो यू विल बी एबल टू मैनेज. सो लेट्स सॉल्व फर्स्ट एंड थर्ड. पहले फर्स्ट की बात करते हैं. तो वी कैन से कि x प्लस 3 का जो बॉक्स है दैट विल बी एक्चुअली दिस. वी कैन टेक आउट द इंटीजर फ्रॉम द बॉक्स. माइनस sec 2x प्लस cot 3x. नाउ व्हाट हैपेंस? x minus fraction box x is actually fraction x minus 2 minus sec 2x plus cot 3x. Now what? The idea is कि इसका पीरियड होगा 1, इसका पीरियड होगा pi and that will be pi by 3. Now we have to take LCM and that will be the answer. Now what is, तो यहां तक का पार्ट आप मैनेज कर सकते थे. इसके बाद का पोर्शन अगेन यू हैव टू वॉच दैट वीडियो ऑफ LCM. इफ यू हैव नॉट, देन इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट. एंड द आइडिया इज कि नो LCM is there and so the function is non-periodic.
This is a non-periodic function because 1 और pi का there is no LCM. You may say कि sir pi होगा, but that is not true because pi is not divisible by 1. Then you may say कि sir 1 से तो सारे नंबर डिविजिबल होते हैं, which is wrong. So go watch the video of basic mathematics वाले वीडियो में, प्लेलिस्ट में you will see a video of LCM, you will find it there. कि that this is non-periodic. First step is okay, you can do that. Second step was difficult. इसकी बात करते हैं. The idea is box x है और एक ये भी x है. But what I am going to do is I am going to take a different approach than this. x plus 3 को मैंने बॉक्स को बॉक्स रहने दिया. But idea is कि periodic function की बात कर रहे हैं, and when we are talking about the periodic function, it should be not box, but it should be fraction. The same concept we can use here also, but I am going to use it. That will be x minus fraction x. When I talk about this, I can say x minus fraction of that. Then I say x plus 2 by 3 minus fraction of x plus 2 by 3 minus 3x plus 4. X, 3x cancel. What we are left over is this minus this minus this plus some constant that is 1 by 3 and 2 by 3 and that is 1 and plus 4 which is 5. Now you can find the answer. The idea is iska else period 1. This is also 1, this is also 1, this is anything. So finally if I take LCM I will get 1. So 1 is the answer. Now we are going to discuss this because this is something different. बाकी सब तो clear cut है, there is no problem. अगर मैं ये पार्ट आपको क्लियर समझा पाऊंगा तो you will be able to manage this, और ये तो आपको पहले से पता है. इसका पीरियड 2 pi upon pi by 2 that is 4. So we have to find this and this. So this is what I am going to discuss. Sin pi box x by 4. लेट्स से कि एक gx है, ये एक सेपरेट क्वेश्चन हो गया, इसको ध्यान से देख लो, थोड़ा ट्रिकी है. अगेन व्हाट वी से कि बॉक्स है तो पीरियोडिक नहीं होगा, बट दिस मे बी पीरियोडिक. लेट्स फाइंड आउट. सो इफ आई से g of x plus t equal to gx अगर हो जाए तो दैट विल बी अ पीरियोडिक फंक्शन. सो इट मीन्स sin pi by 4 box of x plus t equal to sin pi by 4 box of x. It should be like this to be the periodic function. Now sin theta equal to sin alpha. Now you should know trigonometric equation. Trigonometric equation में if you remember तो आता है pi by 4 box of x plus t should be equal to n pi plus minus 1 power n pi by 4 box x. So for what value of t this is going to be true, and the idea is कि pi by 4 box x is okay. ये t हमें बाहर निकालना है. You have to take out this t and this t बाहर आएगा और वो should be multiple of n pi, because यहाँ प्लस साइन है तो यहाँ भी प्लस साइन होना पड़ेगा. पाई बाई 4x को भी प्लस होना पड़ेगा. प्लस होने के लिए n को इवन होना पड़ेगा. तो जो डिफरेंस है जब t बाहर आएगा इट हैज टू बी एन इवन मल्टीपल ऑफ पाई, एंड फॉर दैट व्हाट वी नीड द मिनिमम 8 विल बी द वैल्यू ऑफ t. t का मिनिमम वैल्यू 8 होगा. जब ये 8 हुआ, 8 बाहर आया तो 8 पाई बाई 4 मतलब 2 पाई एक्स्ट्रा आया, दैट इज ओके. n का वैल्यू 2 हुआ, 2 पुट किया तो पाई बाई 4 बॉक्स x हो गया. तो थोड़ा एडवांस लेवल का अंडरस्टैंडिंग है. इफ यू ट्राई हार्डर यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि जब 8 t का वैल्यू 8 का मल्टीपल होगा तो t बाहर आ जाएगा. बॉक्स के अंदर से इंटीजर बाहर आ जाता है, और अगर t बाहर आया तो t बाहर आके 8 पाई बाई 4 मतलब 2 पाई बन जाएगा, और 2 पाई तो ऐड करने से नॉट गोइंग टू मेक एनी डिफरेंस इन दिस. सो इसका पीरियड हो गया 8.
सिमिलरली इसका पीरियड हो जाएगा 6 और इसका पीरियड है 4 एंड सो आंसर विल बी LCM of 8, 4 and 6 and that is 24. I will say this is the one of the best questions of periodic function. After this there will be other questions also. एक whole lot of other, पूरा एक अलग आइडिया ही है. यहाँ तक तो हमें functions पता होते थे. Next screen पे what I am going to do is, आपको functions ही पता नहीं होंगे, still you will be able to find the period of the functions. So let's finish it up here. We are going to next screen and there we will be doing a whole different kind of question. Okay, so these are two special questions, two special kind of questions that are part of this periodic function video. So in these kind of questions you will be asking what is the period of the function. So what we are going to do is, ध्यान से देखना, this is something known 1331. Coefficients are 1331. 1331 जब होता है तो that is basically 1331 is a plus b cube के फॉर्मूले में आता है. So this is actually 1 minus fx का क्यूब है. The curly bracket is basically 1 minus fx का क्यूब और उसका भी पार 1/3 गिवन है और +1 है. तो आई कैन से दिस इज 1 minus fx. This is 1 minus fx. Finally we are getting this. Finally we are getting 2 minus fx. So f of x plus p comes out to be 2 minus fx. Now we are going to proceed. Now this question is exactly like this. थोड़ा सा इसका better version है, but basic concept will be same. ध्यान से मेरी बात सुनना. Functions में there will be so many questions like this where you won't know the function. जहाँ आपको function पता नहीं होगा, सिर्फ fx plus something ऐसा ही दिया होगा. Whenever you have something like this, there will be some x and some another form of x. Usually what we do is we try to create x की जगह x plus p. We are trying to replace x by x plus p. So if I write x equal to x plus p, if I am trying to put x की जगह x plus p, that will be x plus 2p. Because x is replaced by x plus p, so x plus p equal to 2 minus f of x plus p. Now you can subtract these two equations or put the value. f of x plus p क्या है? 2 minus fx. 2 cancel हो गया, we get fx. Now what do you see? f of x plus 2p का वैल्यू fx है, इसका मतलब the period is 2p. The period is 2p. तो एक x था, दूसरा कुछ और है, जो भी वो है वो x की जगह रिप्लेस कर दो. रिप्लेस x बाय x प्लस p एंड यू विल बी एबल टू मैनेज. अब ये सिर्फ पीरियोडिक फंक्शंस का कॉन्सेप्ट नहीं है जो मैंने अभी बताया. दिस विल बी डन इन सो मेनी क्वेश्चंस. पीरियोडिक में एंड फंक्शन की वैल्यूज में देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस, तो विल डू देम in the later videos. In this case what we do, we have 4 x's, x minus 1, x plus 1, x plus 3, x plus 5. What you see that कि यहाँ पे x और x plus p का डिफरेंस p था तो हमने x में p ऐड किया. यहाँ पे जो डिफरेंसेस हैं, इफ यू सी -1 +1 3 and 5, डिफरेंस इज 2. इसमें 2 ऐड किया तो ये आया, इसमें 2 ऐड किया ये आया, इसमें 2 ऐड किया ये आया, मतलब 2 के डिफरेंसेस में है. So what I am going to do, I am going to replace x by x plus 2. Let's see what happens. x की जगह x plus 2 रखा. This will be, think of it, x plus 5. x की जगह x plus 2, x plus 3. x की जगह x plus 2, x plus 7. Now what? Something, you see, we can add these two. Add करोगे तो f of x plus 1, f of x plus 1 cancel, f of x plus 5, f of x plus 5 cancel,
एफ ऑफ एक्स प्लस 3 एफ ऑफ एक्स प्लस 3 कैंसिल, तो हमें मिला एफ ऑफ एक्स माइनस 1 इज एफ ऑफ एक्स प्लस 7. It looks like f of x plus t equal to fx के फॉर्म में आ तो चुका है. यहां पे that was not the form, but here it was the same form. तो दो x है, दो f में कनेक्शन है, but it should be x and x plus t. So I am going to make this x smaller वाले को. So now what I am going to do is x minus 1 की जगह I am going to put x. That gives me fx equals to, tell me, x minus 1 की जगह x पुट करेंगे, मतलब x की जगह x plus 1 पुट करेंगे, to we get x plus 8. What do you see? You see that it is a periodic function with period 8 because f of x plus 8 का वैल्यू fx आ गया. सो फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन स्टार्टिंग में देखने में बिल्कुल डिफरेंट थे, बट एक्चुअली इसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया तो ये मिला, एंड नाउ दीज टू आर एग्जैक्टली सेम काइंड ऑफ क्वेश्चंस. तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं. यू हैव टू अंडरस्टैंड दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस. अब एज आई सेड कि दीज आर नॉट लिमिटेड टू पीरियड्स. एक सिंपल सा क्वेश्चन, लेट्स से एक बेसिक आइडिया है कि एफ एक्स plus 2f of 1 by x equal to 3x. Then find fx. fx क्या होगा? So what I say कि एक x है और एक 1 by x है. Let's convert this x to 1 by x. यहाँ क्या किया था? x को x plus p में कन्वर्ट किया था. यहाँ क्या है? x minus 1 को x plus 1 में कन्वर्ट किया. यहाँ we are going to convert x to 1 by x. So I will get f of 1 by x. If I replace x by 1 by x, I will get this. I will get this. ध्यान से देख लो. Now actually what I need is fx. So I am going to eliminate f of 1 by x. And for that equation 1 में से equation 2 का 2 times subtract करने का. इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 का डबल. इक्वेशन 2 का डबल मतलब ये 2 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 6 by x हो जाएगा. सब्ट्रैक्ट किया तो एफ एक्स माइनस 4fx इज माइनस 3fx. ये 2f of 1 by x 2f of 1 by x कैंसिल हो जाएगा, एंड दिस विल गिव यू 3x माइनस 6 by x. एक छोटा सा सिंपल सा ऑपरेशन है. यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस. टू फाइनली एफ एक्स कम्स आउट टू बी माइनस एक्स प्लस 2 by x. So it is not this concept of converting one input, कहाँ गया? This one input to other input is not limited to periodic function. One input को दूसरे input में convert किया, एक input को दूसरे input में convert किया. This is not limited to the period of the function, but general concept है. When you will get these kind of questions, these are actually called functional equations. These are actually called functional equations, जो एक separate video में I will cover. So this was your video of periodic function. Let's move to something else. Thank you.